Okay, so we are live and we're just going to wait for some viewers to join in and confirm that they can see us and hear us clearly. And once that happens, we'll begin. Every time I start these sessions, I also ask how is the weather over there. I don't know why I ask that because it's June, end of June, and we all know it's really hot, but still, how is the weather? Yeah, I think, but weather in Islamabad is pretty much better than other cities. So I used to be in Lahore last year, so we are actually enjoying this weather. For us, it is really, really pleasant. Wow, okay. I asked if someone is in the audience is from Lahore, maybe they can also comment how they're feeling today. So I do have a few viewers. Assalamu alaikum everyone. If you could please confirm that you can hear us and see us clearly so that we may begin. Thank you. So waiting. But they're still seeing us, so I'm assuming that they can hear us. So you know what? I'll just begin at the start. So, Assalamu alaikum everyone. This is Rida Zainab from Creative Kinder House, and today the guest with me is Dr. Sana Majeed. She is the founder of clinic Bioheal Spectrum Pakistan, and she is mother to a beautiful boy who has ADHD and is on the autism spectrum. So today we are going to be talking about biomedicine and exploring biomedicine in the field of autism. Welcome, Dr. Sana. How are you today? Yeah, I'm good. How are you doing? Thank you. So thank you so much for joining us today. Really excited for it. If you could tell our viewers a little bit more about yourself. Okay, so my name is Dr. Sana. I'm basically MBBS doctor, and I have a son who is on spectrum. He's going to be 6, mashallah, in July. Mashallah. And before his diagnosis, I was working in King Edward Medical University as a Mm-hmm. pediatric resident. But after his diagnosis, I somehow took leave and I preferred to work with him for some time. But as you know, like it's not easy to deal with the kids and it's a longer Yes. journey. So I had to quit my training. And then when I started working with my son, he was 4 years and 2 months old when I got his diagnosis actually. Okay. So Okay. yeah, he is autistic and ADHD as well. So as he was more on the side of ADHD that time, Mm-hmm. so he was a happy child, and somehow he was better in communicating and socializing with kids at that time at Okay. 4.3. So I was not that much concerned about his autistic features because he did not display any much of those at that time. So at that time, I started with the therapies, and luckily, few of my friends who were abroad, who were visiting the MAPS doctors and looking into other options of controlling the behaviors and managing the kids. So there was a doctor, she guided me, and I started with the therapies and biomed both at the same time. Okay. So what happened, like at that age, my son was not calling me mummy or my husband daddy. He was just he just used to be obsessed with rhymes. That was the only communication he had. That was the only speech he had. So there was no other word, there was no pointing, nothing at all. So from there, my journey Okay. started, and I saw his improvement. He was learning very fastly with biomed and therapies together. So from there, a few of my other friends whose kids were on the spectrum, they asked me to guide them. And from there, we started like a group of 15, 20 mothers, and then it was like 50, 60 parents. And then now, like I had to come to this field because I had to communicate with lots of parents on daily basis. So then I decided to take it on another step, and then I established my clinic, and I started guiding and helping parents and discussing what is biomed and how we help our kids and how they improve, what to do, what are the options like this. So, Alhamdulillah, I'm doing this on professional basis, I can say.
And in Pakistan, currently, I don't think so. We have anyone who is doing biomedicine at this level. So we really needed this. So Alhamdulillah, things are going fine. So Alhamdulillah. this is all about how my journey started and how I entered this field from my pediatric residency to Bioheal Okay. Spectrum. Just like you just said, you tell parents about what is biomedicine. So I think we would like to start from there. If you could tell our viewers what is biomedicine. So actually, biomedicine is alternative, you can say alternative treatment to the conventional medical options we have. In Okay. biomedicine, we look into the causes, the reasons of having the problems, the core problems, the root of the behaviors. So the biomedicine deals with gut and brain connection in the autistic kids. For that, one needs to know what is the gut and brain connection, like knowing the biomedicine and related to autism. Okay. Actually, biomedicine does not only deals with the autism, it deals with all the chronic illnesses or any other problem for which we don't have any much medical or treatments to deal with. So in autism especially, the research has showed it's been proven that the autistic kids have gut-brain connection problems. They have disturbed gut-brain axis. So due to that, they have hidden behavioral problems. Like you can have obvious digestive issues as well. On the other Mhm. side, there are hidden issues like all those type of behavior problems we discussed for our autistic kids. So we say that they have core causes which lie in the gut or the brain, and then there are many reasons for that. Maybe inflammation, and why is that inflammation? That is another query. So you're saying that all the autistic kids have the say gut brain issues. Yes, yes. Okay. So there has been researches um, of autistic kids with the neurotypical kids, and these researches shows that the autistic kids have these gut and gut brain problems, inflammation going on the guts, like we say Mhm. it's a leaky gut, and this leaky gut leads to release of toxins, chemical compounds, which affects your brain. And then Okay. the kid, and what part of the brain these toxins are actually affecting, that reflects into your kid's behaviors. If it's a speech area or a motor complex or the sensory area, okay. So this is actually the basis how we start dealing with the biomedicine. So Okay. there are many areas like utilizing biomedicine. We can work on the energy problems, the brain fog, the attention, the focus, the picky eating, and the other neuropsychiatric problems. These all comes under the coverage of the biomedical interventions. Okay. So, but we also hear like a lot of controversy around biomedicine. Okay, maybe it's not evidence based. Like you have pointed out, okay, it Yes, is yes, actually it is. there have been researches conducted, but Yes. still there's a lot of controversy around it. Why do you think that is? Actually, the controversy is, I guess, it is just that we don't know much about it. Okay, so Mm-hmm. at one time when I started, I had many questions in my mind. So I, being a doctor, sorry, being a doctor, I explored all that available options, and I started reading about it. So at some point of time, I too was not understanding what is the gut brain connection and why is this so. So I did not started using this for my son or any other kids like on my own or like someone else is saying it. This is all evidence based. The problem Mm-hmm. is we are not aware of those evidences. Like in Pakistan, there is no research has been going on. Research is a very far away question. Like we are not working on it. Actually, we don't have any other options. So researching and evidence-based studies in Pakistan, we are not doing anything. We are not reading about any of these things.
So actually, this is the point is this: we are not aware of biomedical interventions and how they are working. The researches are being done. These things are have been done in Europe and US, and there are doctors and specialists. They actually agree to this gut-brain connection. And obviously, after those researches, there are comparisons with the neurotypical kids. Everything is available there. Okay, okay. Because we also have a comment from Shumaila. She's saying that the controversies aren't by parents for sure. Shumaila, if you can clarify, do you mean the controversies are Yeah, created by I professionals? can Yeah. I can add up into this. Okay. Till let's wait for her comment as well. I think this is because like those parents who are actually using proper biomedicine, Mm-hmm. they are seeing the gains. And even me, like I have proofs, like if you start something some let's say any of like say just simply a vitamin or Okay. biomedicine is something not that is something too alien out of the world. Biomedicine is something which is around us. It includes starts from our diet, from our environment, everything, eating good, eating organic, and Mm-hmm. reducing the junk, reducing the toxins. Like this is not specifically something for autistic kids. Anyone can opt it, and it will result in benefits, in positive results to everyone, not just the autistic ones. Autistic kids, they have more better results, more prompt results because they have the issues more commonly compared to the normal population. So Okay. this is the point. The parents actually they see the gains. So sometimes like the complaints parents have, they have some adjustment of the doses and inavailability of the supplements or proper consultation with the doctors, follow up. This is the main problem the parents is having. But actually the problem lies on the other side, the population which actually does not believe in biomedicine. That's the thing. See, Hanji, and that's like you pointed out, it's probably because they themselves don't do enough research, enough yeah, they don't read up on biomedicine enough to know about it, okay, whether it's Yes. beneficial or not. Actually, just uh this is small. Yes, you can carry on. नहीं, नहीं, please, बोलिए. I was just saying like sometimes we go for therapies or any other place. Mhm, We see kids like especially our autistic kids. They are picky eaters because yeah, of that problem. Their oral motor, their oral sensory issues, and other problems. So they are usually on junk food, the juices, the refined sugars, the exactly, junk. exactly. So commonly, and plus, when we are going for therapies, we have a very strict schedule to follow. Mothers have to accompany their kids to the therapy centers or schools or anywhere else. So whether these kids are traveling or going for therapies or any other place, these Mm-hmm. you commonly see these kids eating junk, a lot of junk, Yeah, and yeah. their food actually comprises of these things. So how we start? We start from suggesting to cut off the junk, the refined sugars. So basically, this is the point from where biomedicine starts, and actually there is no problem in this. So at the place, like the therapist or any other professionals who watch these kids eating junk foods or having a big pack of Lays or a big pack of juice in their hands, everyone should stop them, and then counsel the mothers. Actually, it's a very difficult step. Like mothers are not ready to understand as well. They have a lot of issues like how can we manage separate cooking for them, or they are picky eaters, how to deal with this. Once you start working on the biomedical side, I have personally seen the picky eating and these all issues, they start resolving itself. Like for my son, in the beginning, I used to reinforce him or do a lot of other things to make him eat this. You have to eat this, changing the texture of the food and many other things. But Mm-hmm. after a few months, when he was on a gluten-free diet and I reduced the junk, so I witnessed he started eating things himself. So your journey becomes easier if you work on both these sides.
therapist gives you the proper structure of how should what a kid is supposed to be doing, like how he start his journey on the therapy side. So speech is either it is speech therapy or occupational therapy. So they give you a proper plan of structuring his routine. Inner healing depends on the biomedicine, and these both things go hand in hand. So we are not against therapy. I go to the therapist. My son has actually learned a lot, but with inner healing, this benefits everyone. Even for a therapist, it's really a blessing. Like your kid is going to improve the IP goals you set for an year is being achieved within months. So the kid can progress, and the therapist is all. I'm sure he or she is going to be really happy with this. So Yeah, no, these are I very understand. You're saying कि एक मतलब एक involved approach होनी चाहिए ना कि different avenues से काम exactly किया जा रहा हो. saying no to something, like just say a no without knowing what actually it means. Hmm. सो आई डोंट नो, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्या हैं, कभी मेरा इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये पता है कि लोगों में अवेयरनेस कम है, और ये वो चीजें हैं जो कि ओवरऑल सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं, उसके बहन भाइयों को, उसके पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को ऑप्ट करनी चाहिए. D'accord. Shamaila has further commented that people who heard about Biomed first comment, I heard from parents that they were guided by therapists and doctors that these disabilities doesn't have any cure. Don't waste your time, etc. Even they don't read or tried any of these. Yeah, Shamaila is talking about the professionals and how they Yeah, that's themselves are actually not more we aware. all have been through this, I guess, at a stage. Like अभी मेरा तो 4 months पहले की बात है कि जो है एक्चुअली ये पॉइंट वैलिड है कि ये कह देना कि अब ये बच्चा डिसेबल्ड है और ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा. जी. ये यहाँ से अगर आप पेरेंट्स का जर्नी स्टार्ट हो तो मेरा ख्याल है उनकी जो एनर्जी शायद वहीं पे डाउन हो जाती है. बिल्कुल. We encourage to opt a healthy lifestyle, वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. और ये सब बिहेवियर्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होती है, इन सब के रूट कॉज उसके अंदर मौजूद है. अब वो डिपेंड करता है कॉजेस पे, क्यों है, क्यों, मतलब कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि हम अटेंशन फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं बायोमेडिसिन से, और वही काम हम थेरेपीज पे कर रहे हैं, तो एक्चुअली कैसे, क्यों, क्या क्या रीजन है. रीजन ये है कि वो जो बच्चा ऑटिस्टिक है उसकी जेनेटिक्स, देन एनवायरमेंटल रोल प्रूवन है स्टडीज में. वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स उसकी सराउंडिंग, उसकी जेनेटिक्स को इफेक्ट करती हैं. अगर हम उन टॉक्सिन्स को, उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें तो वो जेनेटिक्स मजीद वर्स नहीं हो सकती, या हम उनको रिवर्ट कर सकते हैं एक बहुत ऑप्टिमल लेवल में. लाइक ऑटिस्टिक वो रहेगा, हम उसकी जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, पर हम उसके जीन की एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं. और वहां पे जैसे जैसे बच्चा आप उन चीजों, क्योंकि ऑटिस्टिक वो बाय बर्थ है व्हाटएवर, बट जो फर्दर चीजें एडअप हो रही हैं, लाइक बहुत से बच्चे हैं जब उनकी डाइट में ग्लूटेन इंट्रोड्यूस होता है, वहां से वो ऑटिस्टिक फीचर्स उनमें अचानक से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. अगर आप उस ग्लूटेन को कंट्रोल करते हो ओवर फ्यू मंथ्स, 20, 30, 40, 50% उनके सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं. देन आपके पास क्या रह जाता है, आपके लाइक सेंसरी इश्यूज कंट्रोल हो गए, आपके पास स्पीच बची है, आपने स्पीच पे काम करना है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं. बट ये सब चीजें हम बायोमेडिसिन में इन पे बिलीव करते हैं, इन पे काम करते हैं, बट हमारी जो असेसमेंट्स की जाती हैं या जहां हमारे बच्चों की थेरेपीज, वहां पे इन सब चीजों को बिल्कुल जीरो समझा जाता है. आपको यही कहा जाता है कि आपका बच्चा डिसेबल्ड है. Like just 5 months ago, I had reassessment of my son, and I was told that he will not be able to make friends ever. So he was verbal, but he will not be able to make friends forever. So you should start working on his skills, and you should be. He will never ever be having friends or relationships even. So for me, I was like कि he is verbal, मेरे साथ बैठता है, फैमिली में लोगों के साथ बैठता है, बट अगेन द आंसर वाज कि आपके साथ करता है बट ये किसी और के साथ नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि ये ऑटिस्टिक है और ये तो अभी छोटा है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये सब चीजें और ज्यादा वर्स हो जाएंगी.
सो मैंने उसके ये देखे बिहेवियर्स देखे, अब ठीक है, अब मुझे अब कौन सी कोर प्रॉब्लम्स पे काम करना चाहिए। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। उसमें मैंने उसे खुद भी सोशलाइज करवाया, इनर हीलिंग भी की, खुद भी बाहर सोशलाइज कर। लाइक जस्ट 1 महीने की बात नहीं थी कि वो अपने स्कूल के बच्चों के बारे में भी एक्सप्लेन करने लग गया। उसने नेबर्स के साथ बच्चों के फ्रेंड्स बनाए नाम, और बस ये 3 महीने पुराना। और अब वो मुझे लाइक उन्होंने मुझे असेसमेंट जिन्होंने की ये भी कहा कि ही विल नेवर एवर टेल यू एनी नेम ऑफ हिज फ्रेंड, ही विल नेवर इमिटेट यू कि मेरा फ्रेंड ऐसे करता है या ये करता है। इस तरह की बातें कभी नहीं आके बताएगा, क्योंकि ये ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक बच्चे ये सब नहीं बता सकते जो नॉर्मल बच्चा करता है, बट ही इज डूइंग दैट ऑल। वो एक इमिटेट करता प्रोफेशनल ने है। आपको डायरेक्टली ये बोला एग्जैक्टली, कि वेरी फेमस, वेरी। बट मैं ये जरूर कहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे कहा उसने मुझे बहुत हेल्प किया। हम्म। कैसे हेल्प किया? क्योंकि मैंने उनको एरियाज, वो चीजें जो शायद मैंने उसके लिए नहीं सोची थी, कि शायद दोस्त का नाम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वो चीज मेरे दिमाग में आई। और उसके बाद ये कि उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया, कुछ चेंजेस की, और उसकी डाइट में। और उस पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हमारे पास सोशलाइजेशन करने के लिए भी जो है वो रेमेडीज हैं कि आप इन पे काम करो, ये करो, तो ये वाली चीजें जो है वो हेल्प आउट करती हैं। तो ये वो एक्चुअली उस पॉइंट के बारे में बात कर रही है कि जहाँ पे आपको ये सुनने को मिल जाता है कि दिस विल नेवर एवर हैपन, बट या वो चीजें होती हैं, हो रही हैं। सारा डिपेंड करता है कि हर पेरेंट को अपने आप को अब एजुकेट करना चाहिए। अब मीडिया बिल्कुल। तो आजकल इतना कॉमन है, रिसर्चेस हो रही हैं, सब कुछ है। तो पेरेंट्स खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो है अपडेट करें अपने आप को। और ऑब्वियसली दोनों चीजें, जो भी मैं कहती हूँ, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए तो आपको कोई कहीं से बता देता है कि जी आप ये तिलावत करें, वो भी करें। आपको कोई कहता है कि जी ये सप्लीमेंट दें, आप वो भी दें। आप बेस्ट थेरेपिस्ट भी ढूंढें अपने बच्चे के लिए, स्कूलिंग के लिए, एवरीथिंग। यू शुड बी वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तभी आप उनको डेफिनेटली। इतना स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैम अभी आप डाइट की बात कर रही थी, तो वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द डाइट थिंग। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द नीम चेक डाइट, if I'm reading it correctly? Nemcheck is a bit controversial protocol, but obviously I don't know the reason behind, but Pakistan में Nemcheck पे बहुत tremendous results हैं, बच्चों ने बहुत improve किया, including my own son. When अच्छा। I started on Nemcheck, his gains were so much excellent and so much fast कि मैंने 3 बार नेम चेक स्टॉप कर दिया, क्योंकि मुझे वो अचानक से एक बच्चा जो कि 4 years and 3 months का है और जो पॉइंट नहीं करता, लाइक on my first visit to the speech therapist for assessment, she asked me, does he points? So I said I never noticed it. तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप घर जाएं चेक करें, तो मैं फिर बड़ा करती रही और उसने पॉइंट नहीं किया। बट ये कि जब ये असेसमेंट्स पूरी हुई, 1-2 महीने लगे, और मैं उस टाइम पे नेमचेक पर आ चुकी थी। नेमचेक स्टार्ट किया तो थर्ड डे ही वाज पॉइंटिंग, और मैंने रोक दिया, क्योंकि मुझे ये डाउट था। ऑब्वियसली मैंने आपसे कन्फेस किया है कि मैंने कुछ चीजें नहीं पढ़ी थी, तो किसी के सुनने पे किया, तो मैंने वो रोक दिया। मुझे लगा कि आई डोंट नो इसमें क्या चीजें हैं। हालांकि नेमचेक प्रोटोकॉल इज ओनली ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल हैविंग ओमेगा 3, और उसमें प्रीबायोटिक है एक, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बट मुझे डाउट हुआ कि इसमें पता नहीं क्या है, मैंने रोक दिया। उसके बाद मैंने कोई 1 हफ्ते बाद दोबारा स्टार्ट किया, तो उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग में चीजें अचानक से मैंने वो फील की जो मैंने बहुत अरसे से काम करी थी और कभी नहीं देखा। मैंने फिर रोक दिया, मैंने कहा यार इसमें कोई चीज है, जादू तो नहीं हो सकता ऑटिस्टिक बच्चे के साथ ऑब्वियसली। थर्ड टाइम मैंने स्टार्ट किया तो वी वर गोइंग टू स्पीच थेरेपी फॉर 1 मंथ, और हम दे दो हमारा फर्स्ट वर्ड था जो हम उसे करवाते थे कि दे दो दे दो दे दो, बट वो नहीं बोल रहा था। सो ठीक है। 30 days में मैं 4 times सेशन पर गई, और 30 days फिर मैंने दोबारा नेमचेक स्टार्ट किया उसी दिन। दैट वाज द फर्स्ट डे ही सेड दे दो। तो अगेन जब मैं आपने स्टार्ट बहुत किया तो ज्यादा फिर एग्जैक्टली मेरे साथ तो नेमचेक पे इस तरह जैसे कहते हैं मिरेकल, एक्चुअली मिरेकल हुए। और पर उसके साथ दूसरी एक और हमारे साथ लाइक से कि 100 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको नेमचेक सूट नहीं करता। तो उसके लिए हमारे पास अब ये होता है कि पहले पाकिस्तान में टेस्टिंग जो है वो नहीं हो रही थी, इतनी कॉमन नहीं थी। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप टेस्टिंग करवाएं, देन यू गेट अ पिक्चर what biochemical abnormalities your kid is having, उसकी गट में क्या क्या मेन इश्यूज हैं, उसके सेलुलर लेवल पे क्या इश्यूज हैं, इन्फ्लेमेशन किस पार्ट में है,
कितनी है, उसकी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या जो भी डिस्टर्ब चीज़ें हम बायोमेडिसिन में अपनी कैटेगराइज करते हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ। वो जी सारा आपको एक पिक्चर मिल जाती है, और देन जब आपके पास एक टेस्ट होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होके अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये नेमचेक पे जो थोड़ा बहुत इशू आता था या किसी को आया, वो इसी वजह से होता था बिकॉज कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो हर बच्चे के पास, और सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे इजी टू फॉलो जो प्रोटोकॉल है वो नेमचेक ही है। नो डाउट उस पर पूरी दुनिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो अभी भी अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो टेस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत इनिशियल लेवल पे, तो उनके लिए नेमचेक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। ऑन द अदर साइड वही है कि जो जिनकी टेस्टिंग हो जाती है, जिनका पता चलता है, तो जो है वो किसी और प्रोटोकॉल पर भी जा सकते हैं। Okay. So please we have another name like Mana Khan is saying my son's I think she tried to say picky. Yeah, picky eating got resolved with GFCF diet. So That is this is another the protocol. GFCF is the gluten free and the casein free diet. सो Okay. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर पिकी ईटर है तो दैट मीन्स पिकी ईटर होते हैं बच्चे, कॉन्स्टिपेशन डायरिया ऑफ एन ऑन उनको होता है। अगर आपने भी ऑब्जर्व किया हो, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। तो बेसिकली इनके साथ फीचर्स तो बहुत ऑब्वियस होते हैं, इनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। रात को हिस्ट्री में ये होता है कि रात को 2 बजे 3 बजे या तो बच्चा वो सो नहीं रहा होता बिकॉज उसकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, तो वो सो नहीं सकता। वो बच्चा सोता बहुत लेट है, देन रात को 3 बजे उठ के रोना या सही रात रोते रहना या किसी भी टाइम उठ के रोना, ये पॉइंट्स हैं। और पिकी ईटिंग उसमें एक है, और उसमें यही है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द गट, ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व होना शुरू होती हैं। ग्लूटेन एक मॉलिक्यूल है, कैसीन, ग्लूटेन हमारा व्हीट में है, ओट्स में है। तो एक्चुअली ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर एलर्जिक है बच्चा, अगर, और जो कि ऑटिस्टिक बच्चे कॉमनली हैं। तो उसमें ये होता है कि ग्लूटेन क्योंकि उस बच्चे के लिए एलर्जिक है उससे, तो जब वो ग्लूटेन लेगा या कैसीन लेगा जो कि मिल्क प्रोटीन होती है, तो वो एक्चुअली उसको कोई फायदा नहीं देते। वो उसमें उसकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करते हैं, वहाँ डैमेज करते हैं बच्चे की गट में, उसकी जो गट लाइनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं। उस डैमेज के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स आप डाइट में ले रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होते। सेकंड, वहां से सेकंड स्टेज ये आती है कि जो कुछ बच्चा खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसमें मल्टीपल मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। और उसके बाद जब वो डेफिशिएंसीज हैं वो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देती हैं, लाइक आयरन डेफिशिएंसी है, वो प्रूवन है, वो तो मेडिकल में भी मानी जाती है कि उससे बच्चा जो है वो जिद्दी होता है, चिड़चिड़ा होता है। तो ये सारी डेफिशिएंसीज वहां से आना शुरू होती हैं। देन दीज इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स ये एक इन्फ्लेमेशन की पूरी आपकी एक बना देते हैं, और वहां से जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रेवल करके ब्लड में मिक्स होकर ब्रेन तक जाते हैं, और वो बच्चे ब्रेन तक जाते हैं जिससे एरिया को अफेक्ट करते हैं। फॉगी फॉगी ब्रेन, जो बच्चे हमारे लॉस्ट रहते हैं, ठीक वहां से देन इन्फ्लेमेशन जितनी ज्यादा होती है फिर देन इनमें एग्रेशन आ जाता है। कैसीन जो है जो कि मिल्क प्रोटीन है, ये अडिक्टिव बन जाता है। ये बच्चे की जो पेन थ्रेशोल्ड है उसे बढ़ा देता है, पेन सेंसेशंस को इन अदर वर्ड्स सप्रेस कर देता है। तो जो वो बच्चे, इसलिए इनको जब इनकी पेन सेंसेशंस कम हो जाती हैं तो ये फिर सेल्फ हार्म करते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता सेल्फ हार्म। तो ये वो बेसिस है जो जो पैथोलॉजिकल बेसिस हम इन बिहेवियर्स की पढ़ते हैं और जो कि प्रूवन भी हैं। तो फिर एग्रेशन बच्चे में आता है। देन जब आप मिल्क स्टॉप करते हो, कैसीन स्टॉप करते हो और ग्लूटेन कंटेनिंग फूड को आप स्टॉप करते हो, तो विद इन वीक्स यू सी वेरी विजिबल रिजल्ट्स विद इन वीक्स, क्योंकि उस वो चीज़ों ने बच्चे में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस की भी होती है कि विद इन वीक्स जो है आपको बहुत विजिबली उसमें गेन्स नजर आते हैं। और इसका टेस्ट भी होता है, आप फूड सेंसिटिविटीज का टेस्ट करवा सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि सेंसिटिविटीज हैं, देन यू कैन गो फॉर एलिमिनेटिंग दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर डाइट। और अगर आप वो टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरी बात आपके पास ये होती है कि यू सिंपली एलिमिनेट दीज मॉलिक्यूल्स, दीज फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर डाइट, और यू सी द डिफरेंस, आपको चेंज नजर आता है, इंप्रूवमेंट नजर आती है, एंड यू कैन गो ऑन। मैंने ग्लूटेन फ्री कैसीन फ्री मैंने अपने बेटे को किया, उसके साथ मैंने नेमचेक स्टार्ट किया। ग्लूटेन फ्री और कैसीन फ्री के ऑलमोस्ट 1 वीक बाद वो इतना हाइपर एक्टिव था, मतलब लाइक मैं कहती होती हूँ कि मेरा बेटा बाय बर्थ इतना हाइपर एक्टिव था कि सिंस हिज बर्थ ही नेवर स्लेप्ट।
more than 3 hours. जब वो एक छोटा सा न्यूबॉर्न था तो वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आवरली वो उठता था. उसके बाद जब वो टॉडलर हुआ तो ही स्टार्टिंग ऑल दैट फीचर जंपिंग और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना, चीजें नीचे फेंक देना. सारी सेंसरी उसमें थी, टिपिकल उसकी पिक्चर थी, बट वो आती थी और फिर चली भी जाती थी, जिसकी वजह से मैं शायद उसको ये समझती थी कि बच्चा है, कोई बात नहीं, अकेला है, इस तरह की चीजें. बट जब उसकी स्पीच नहीं डेवलप हो सकी उस टाइम पे मुझे ज्यादा लगा कि रेड फ्लैग्स की नहीं, अब ये प्रॉब्लम. देन फिर उसमें एग्रेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो रहे थे जब मैंने उसके साथ काम किया. तो ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री के विद इन 5 days जब वो एक बार आराम से बैठा तो लाइक वी वर, मी एंड माय हस्बैंड, वी वर सेइंग कि वी नीड टू रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज ये बच्चा 4 साल में पहली बार 15 मिनट से एक जगह पे बैठा हुआ है, 15 मिनट से लेटा हुआ है, ये क्यों नहीं उठ रहा. तो इतनी सडन इम्प्रूवमेंट्स आपको मिलती हैं. कुछ बच्चे डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द सिवियरिटी. हाँ, यहाँ मैं ये ऐड करूंगी कि मेरा बेटा माइल्ड से मॉडरेट साइड पर था, उसकी गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो मुझे जो है इसलिए इतनी जल्दी भी मिले. और बहुत से ऐसे बच्चे जो माइल्डर साइड पर हैं उनको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं. बट जहाँ पे एक वो बच्चा होता है कि जो बहुत सीवियर लेवल पर है और जिसने बहुत जंक खा लिया है और उसके लिए चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, थोड़ा सा स्लो होता है चीजों का इम्प्रूव करना, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. तो आई गेस ये वो एरियाज हैं. अगर आपको सिर्फ डाइट में चेंज करके और एक चीज को रोक के अगर इतनी सडन और अच्छी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है तो आई गेस कि सबको ये करना चाहिए. इसमें सोचने वाला कोई पॉइंट नहीं है. आप अपने बच्चे की डाइट से ग्लूटेन और कैसीन अगर कम करते हो तो इसमें इसको कोई नुकसान नहीं है. ठीक, क्योंकि अभी I'm not sure, I might be misunderstanding this, but you said na milk protein. So I've Yes. had a mother tell me that she removed milk from her son's diet completely Yes. after he was 2 years old. A doctor Yeah. recommended her that. At first she was like कि भाई दूध तो बहुत जरूरी होता है, ये क्या बात हुई कि आप दूध बिल्कुल निकाल ही दो बच्चे की जिंदगी से. But when she finally removed the milk, so she observed like very positive changes in her child, and since then he'll be about 7 now. Since then he Yes, like exactly. milk has been और ये eliminated from आपको his diet. एलिमिनेट करने के बाद ज़रूरी नहीं होता कि लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ें रोकनी पड़े. इट डिपेंड्स कि आप कितना स्ट्रिक्टली, कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हो. तो मे बी आप किसी टाइम पे लाइफ में उसका दोबारा आप मे बी कुछ ईयर्स के बाद या किसी भी टाइम पे आप उसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और मेरे हिसाब से फिलहाल जो जिस तरह की कल्टीवेशन हो रही है, जो काउ मिल्क में अब जो बन रहा है, आई डोंट नो किन चीज़ों से, और जो कुछ हमारी डाइट में ग्लूटेन में जो कि व्हीट पे स्प्रे किए जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स, वो अब इतने ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल हमारे लिए हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से ये डाइट से निकालना अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई हर्ज ही नहीं है. इवन हम सबको अगर आप गौर करें तो कॉमनली ऑब्जर्व किया है मैंने कि ऑटिस्टिक बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से 20-30% बिहेवियर प्रॉब्लम्स किसी ना किसी स्टेज पे पेरेंट्स को भी रहे हैं या अभी भी हैं. मे बी वो इतना बिजी होते हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें नहीं पता चलता. बहुत से पेरेंट्स को स्टिमिंग का भी इशू है, बहुत से पेरेंट्स को स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डाइजेस्टिव इश्यूज. एक्चुअली पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ इफेक्टेड होते हैं, तभी वो ज्यादा बच्चों में भी, या आप कह लेंगे शायद उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो चीजें जो मैं भी खा रही हूँ वही बच्चे भी खा रहे हैं, वही सब कुछ. तो ग्लूटेन और कैसीन तो एक्चुअली ऑर्गेनिक अगर हमें व्हीट मिल सके पाकिस्तान में, जो कि मुश्किल है, अगर वो ग्रो होना शुरू हो जाए तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है. इसी तरह मिल्क का है कि अगर आपको खुद कोई सोर्स पता है, बट अगेन कैसीन तो उसमें है, कैमल मिल्क ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है. और ऑटिज्म के लिए उसके तिब्ब नबवी में भी है कैमल मिल्क, जो है उसके इस्तेमाल का खुद फिक्री के लिए, कि उसमें भी बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स हैं. तो कैमल मिल्क काफ़ी सिटीज़ में बहुत इजीली अवेलेबल है और वो आप उसको ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो काउ मिल्क की जगह, फार्मूला मिल्क की जगह. ठीक है. But I'm just going to take another comment. हमारे पास माशाल्लाह से काफी comments है. I hope we can go through most of them. But sorry, Fakra Sulaiman is asking, commenting, I'm all for therapies, but it's a broken leg. We need it operated, then physio. So maybe she's saying
Yes, I'm not actually she is sure. talking about the healing first. लाइक आप Inner वही healing. बात कह रही हैं कि अगर एक टांग टूटी हुई है, उसको जब तक आप पहले जोड़ेंगे नहीं तो फिर आप उसकी फिजियोथेरेपी करवाते रहें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली आप उस कोर प्रॉब्लम को जब आप डील करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, और ये सब कोर प्रॉब्लम्स हमारे, अब मैं नहीं बता रही या मैं कुछ कह नहीं रही, ये सब कुछ रिसर्च बेस्ड है, इन पे पेपर्स भी हैं, इनके कॉजेज पर। कॉजेज तो बस एक और अलग बहुत बड़ी एक हो सकती है डिबेट अगर हम उस पर बात करें, बट ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। और हमारे लिए पाकिस्तान में आई गेस बेसिक्स, बहुत बेसिक चीज़ों को ऑप्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। उस पर हम जितना जल्दी चले जाएं, जितना जल्दी कर लें, अर्ली इंटरवेंशन ही समझें इसको भी, स्पेशली वो बच्चे जो अभी 5 ईयर से छोटे हैं, 5 ईयर्स तक के हैं। अब जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, अब वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 9-10 साल के हैं या उससे बड़े बड़े हैं, अब उनको पता चल रहा है तो दे रियली रिग्रेट कि, और वो ये देखते हैं कि जैसे मेरा बेटा 4 का था, माशाल्लाह 4 to 6 पे आते आते ही इज इंडिपेंडेंट इन हिज डेली लाइफ स्किल्स, ही इज गोइंग स्कूल इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी शेडो टीचर। स्पीच उसकी जो है वो उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, बट ही कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ही कैन कम्युनिकेट विद मी। इंग्लिश पहले सिर्फ इंग्लिश में था, अब उर्दू में भी कर लेता है। एग्जैक्टली स्कूल एकेडमिक्स पे वो लाइक अगर हमारा अब क्लास ऑनलाइन सेशन चल रहा होता है तो अगर उसमें वो विद इन फ्यू सेकंड्स नहीं बताता कि टीचर ने क्या पूछा है, बट 1 मिनट के बाद वो बता रहा होता है, लाइक बताएगा। बहुत एग्जैक्टली। तो वो अपने स्कूल सेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, उसकी जो फाइन मोटिव मूवमेंट्स ये सब कुछ सेंसरी हैं, आते हैं जाते हैं, बट वो इस तरह हैं कि जो कंट्रोलेबल हैं। मुझे मुझे अब अपने उस बेटे के लिए बॉदर नहीं करना पड़ता किसी भी चीज के लिए, सिवाय उसकी स्पीच। ऑब्वियसली उसके लिए मुझे होता है कि वो भी उसकी एज अप्रोप्रिएट हो जाए, जो एक लालच है मेरा। तो ये वो चीजें हैं जो पेरेंट्स को एक्चुअली उनकी जिंदगी आसान करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बस मुझे पता है वो स्टेज आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि, क्योंकि मुझे बताया भी नहीं गया था, तो मैंने तो यही सोचा था कि आई डोंट नो, ये स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है कि स्कूल जा सकेगा कि नहीं, बट सिर्फ एक ही चीज थी कि ये बोल भी सकेगा कि नहीं बोले सके, ये मुझे कभी बता सकेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे कभी ये कहेगा इसे किसने मारा है, इसको किसी चीज से प्रॉब्लम है, कहीं पेन है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। और अगर 1 साल 8 महीने में मैं इतनी दूर से यहाँ आ सकती हूँ कि अब मैं इजीली यहाँ रिलैक्स बैठी हूँ और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरा ऑटिस्टिक बच्चा कहाँ बैठा है, उसे कोई कुछ कहना दे, स्कूल में उसे कोई कुछ कहना दे, ये वो सारी हमारी पीस ऑफ माइंड है जो हमें चाहिए, हमारा राइट है। बेशक, बेशक। सो आई गेस कि और इनमें कोई मैंने अभी तक आपसे कोई बहुत मुश्किल चीज तो डिस्कस ही नहीं की। वो बायोमेड की जो कि दुनिया में अभी भी हो रही है, उस पर तो हमने किसी भी चीज़ पे बात नहीं की। हम तो बहुत अपने सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं, ग्लूटेन है, कैसीन है, हाँ जी। आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सेसिव यूज़ है एंटीबायोटिक्स का, और स्ट्रेस को रिड्यूस करना, आपके बच्चे की हेल्थ, इन सब चीज़ों पे अभी बात हुई है। बायोमेड में नो डाउट इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं, कुछ यहाँ पाकिस्तान में भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। जिन मदर्स ने पढ़ा है वो मेटल्स के पर भी काम कर रही हैं, हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। पर ये कि उसमें ये चाहिए होता है कि आप खुद भी इतना अपने आप को अपडेट कर लो, ताकि आपको पता हो कि कोई जो मुझे ये बात बता रहा है इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट्स में, वो हेवी मेटल्स के बारे में ही है। उसमें हसन इज आस्किंग व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद हेवी मेटल्स। सो एक्चुअली रिदा, हेवी मेटल्स पे टेस्टिंग हो रही है, मेटल्स आ भी रहे हैं, बच्चों में भी पॉजिटिव हैं। अब जैसे मेरे बेटे का कह लो, मैं आपसे शेयर बाबा कर रही हूँ कि उसके स्पीच का मैं आपको बता रही हूँ कि एक बैरियर है जो मेरे लिए मेरा मेन कंसर्न है। तो वो जो उसके मेटल रेज्ड हैं वो अभी वहीं पर हैं, और मुझे पता है कि जब तक वो मेटल्स उसके मैं एक्सक्रीट आउट नहीं करवा लेती, क्लियर नहीं करवा लेती, ये बैरियर शायद उसका थोड़ा थोड़ा रहे। तो नंबर 1, मेटल्स पे दुनिया में बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू ये है, एक तो मेटल्स को क्लियर करने के लिए जो सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं वो अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। सेकेंडली, इसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में एक स्पेशलिस्ट की ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। जो मेरी अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, मेरी अभी क्लासेस चल रही हैं,
सो आई होप कि जैसे मैं जब ऑथराइज अपने आप को समझूंगी कि जी मैं अब इतनी कैपेबल हूँ कि मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ लिया है, मेरा अब होल्ड है, तो मैं अपने पेशेंट्स के साथ वो ज़रूर स्टार्ट करूंगी। बट उसमें हम नेचुरल वे में मेटल्स को रिमूव करने के लिए चलते हैं जो कि सेफ होता है। और ठीक है। नो डाउट कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनमें आपको कोई एबनॉर्मेलिटी इतनी नहीं मिलती, बट उनके मेटल्स इतने रेज्ड होते हैं कि आप उनके साथ और भी कोई कन्वेंशनल डाइटरी चेंजेस कर लो कुछ और, उनको इतना फायदा नहीं हो रहा था, नहीं हो जब तक उनके मेटल्स के लिए काम मेटल्स नहीं में हो ठीक है। जाए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, जो डोजिंग करनी होती पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स चाहिए होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपके प्रोफेशनल की। तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में, अभी तो ये कि एक्चुअली पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बेसिक चीज़ों की ही गाइडेंस नहीं है, तो मेटल्स तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं मेटल्स के बारे में कुछ और बोलूँ तो लोग मुझे पागल ना कहना शुरू कर दें, ये पता नहीं क्या पागलों वाली बातें कर रही है। नहीं नहीं तो मैम। ये वो थोड़ा सा इन चीज़ों पे जो है वो बीइंग ऑन द सेफर साइड, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अगर उनको अच्छे तरीके से पता है एक्चुअली कि वाकई मेटल्स हैं और ये मेटल्स क्या क्या कुछ कर सकते हैं एंड दे एग्री, तो ऑब्वियसली मेटल्स के ऊपर भी काम करते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। बहुत से बच्चों की रिकवरी स्टोरीज हैं। और फिर अगेन वही बात है, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत कुछ है हमारे पास फिलहाल अभी डाटा, मेरे हमारे पास पास अभी नहीं है। मेटल, हाँ मेरे पास नहीं है, मैंने खुद पर्सनली अभी तक किसी बच्चे को ट्रीट नहीं किया। मेरे अपने बेटे का मेरा प्लान है, बट अगेन वही 6 मंथ्स तक जब मेरी अपनी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद। इंशाल्लाह। Okay, Usma, thank you for your question. Fawad Latif is commenting for you, ma'am. First of all, really appreciate your efforts to bring biomed in Pakistan. We should see beyond therapies. I totally agree with you that therapy is not enough for an autistic kid. Thank you for your comment, Fawad. Um, Fakhra is also commenting that our children eat all foods and variety. We don't punish them and they are not guinea pigs. So, what would you comment on that, ma'am? या एक्चुअली ये एक बहुत कॉमन थिंकिंग है, लोगों को ये लगता है कि जो बच्चे बायोमेडिकल इंटरवेंशंस पर हैं उन्हें एज अ हाँ गिनी जी। पी ट्रीट किया जा रहा है कि हम शायद अपनी तरफ से उठ के कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कभी हुआ ही नहीं है या बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पता नहीं डिजास्टरस है। तो एक्चुअली रियलिटी ये नहीं है। और वही बात है कि जब आप पढ़ते ही नहीं हो किसी चीज को, लाइक आई शेयर्ड माय एग्जांपल कि मैंने जब पढ़ा ही नहीं कि नेमचेक क्या चीज है, तो मुझे वो जो मेरिकल्स हो रहे थे वो लग रहे थे कि ये कुछ कुछ अजीब हो रहा है। तो जब आपको पता, अब जो आज हम बात कर रहे हैं उसमें हम बहुत सिर्फ एक बायोमेडिक मेडिसिन क्या चीज है बहुत बेसिक पे बात कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो यहाँ से जो है वो कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। और सेकेंडली एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप ग्लूटेन केसीन अपने बच्चे का कंट्रोल करते हो, उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद आप हर चीज उसकी डाइट में, हर न्यूट्रिशियस चीज उसकी डाइट में होती है, बट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में होती है। तो एक्चुअली हम ये नहीं कर रहे होते कि जी आपने ग्लूटेन फ्री कैसीन फ्री किया और बच्चे पे बहुत जुल्म शुरू हो गया है, पता नहीं उसका खाना पीना बंद हो गया है। एक्चुअली ये तो आपको और ज्यादा देखना पड़ता है, आप उसके लिए न्यूट्रिशियस डाइट देख रहे हो, आप उसके लिए और रेसिपीज देख रहे हो, और वो कोई बहुत महंगी चीजें भी नहीं होती कि अगर हम ये कहें कि नहीं जी अगर आप गंदम रोक दोगे बच्चों की डाइट से तो खिलाओगे क्या। ग्लूटेन फ्री जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारे अपने ही जो डेली हमारी किचन में चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो एक्चुअली आपके बच्चे को और ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ें मिल रही होती हैं। आपने हर चीज़ देनी है बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में, हाँ अनलेस कि आपके टेस्ट में उस फूड आइटम की एलर्जी नहीं आई, तो आपने हर चीज़ देनी है, एक लिमिटेड अमाउंट में देनी है। जंक उसमें बिल्कुल नहीं देना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जंक पर। हर किस्म का जंक बंद, नो लेस, नो पिज़्ज़ाज, नो केक्स, नो जूसेस, जो कुछ बनाए घर पे बनाए, होममेड होना चाहिए। हाँ मदर का काम बहुत बढ़ जाता है, अगर मदर ये करने पे राजी है तो मदर की ड्यूटीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट देन अगेन वही है कि जब आपको गेन्स मिलते हैं, आप उन चीजों में, उन एरियाज में इम्प्रूवमेंट देखते हो कि जो कि आपने सोची नहीं होती। और उसमें मुझे लगता है सबसे आसान काम यही है कि अगर आप डाइट पे कर लो, डाइट पे करने पे आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपको कोई स्पेशल कोई चीज नहीं लानी पड़ रही। बट देन स्टेप बाय स्टेप जब एक बार आप डाइट पे काम कर लेते हो, आगे आपके और भी जो है चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए आपको और चीज़ों को डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ती है, टॉक्सिन्स लेवल्स को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक, आपकी ओवरऑल बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको रिड्यूस करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें टेस्ट में आती हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही। हर एक बच्चे का दूसरे बच्चे से बहुत डिफरेंट है। जैसे हमारा एक ऑटिस्टिक बच्चे के
ओवरऑल फीचर्स दूसरे बच्चे से डिफरेंट हैं। इस तरह एक ऑटिस्टिक बच्चे की जो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसकी जो लैब रिजल्ट्स हैं वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट। तो जो एक बच्चे के रिजल्ट्स होते हैं उस पे उसके मुताबिक काम होता है, और जो दूसरे बच्चे के रिजल्ट्स आते हैं उस पे उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो एक्चुअली जब अगर आप कोई चीजें टेस्टिंग के बाद करवा रहे हो तो उस पर नो डाउट आपके सामने आपकी रिपोर्ट मौजूद है, उसमें डेफिशिएंसीज हैं, कुछ विटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की, कुछ ऐसे उसमें केमिकल मार्कर्स रेज्ड हैं जो आपको बता रहे हैं कि इसमें ब्रेन इन्फ्लेमेशन है, इसके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं। जिस बच्चे का स्लीप इशू है उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ज्यादा है। जो यीस्ट ओवरग्रोथ है ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत कॉमन है, और यीस्ट ओवरग्रोथ के फीचर्स बहुत कॉमन वही हैं जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को होते हैं, जिसमें सेल्फ टॉक है, सेल्फ लाफिंग है, ये सारे हाँ जी। बिहेवियर्स, फॉगी ब्रेन है। तो व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट और यू सी कि आपका कुछ ईयर में आपको उसकी ये सब चीजें डिक्रीज होती हुई नजर आती हैं। तो ठीक है। Should I take the next comment? यस यस, Okay. Uzma Hassan is saying, can they spend a normal life? How much persons spend normal life? I think she's asking about a statistic. So, for me, I would say yes. If my son is spending a normal life, so I would say yes. हाँ, मैं इसमें ये फिर अगेन वही बात है, he was on the milder side. उसकी डाइट में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐसी गई थी, उसके मेटल्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे, और आई गेस कि शायद मैंने बहुत अर्ली उसके साथ, बहुत अर्ली तो नहीं किया, 4 years पे किया। आजकल तो कुछ पेरेंट्स को जिनको अवेयरनेस है वो तो 2-2.5 साल के बच्चे पर भी पिक करके और उस पर स्टार्ट कर लेते हैं, और ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने 18 months या 20 months पे बच्चे के साथ काम शुरू किया और 1 साल के बाद तो उनका डायग्नोसिस ही खत्म हो गया, ठीक है, और देयर चाइल्ड इज रिकवर्ड। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और देन हाउ स्ट्रिक्टली यू वर्क। मैंने 1 साल 8 महीने में ये सारा कुछ किया। एक माइल्ड से मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, ठीक है। मेरे लिए नॉर्मल की आपकी क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए उस अपने बच्चे की नॉर्मल लाइफ की डेफिनेशन यही है कि वो अपनी हर चीज मुझसे कम्युनिकेट कर सके, उसकी स्कूलिंग हो। आई डोंट वांट हिम टू बी अ टॉपर, बट वो स्कूल जाए, वो जो बच्चे सारा काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वो करे, उसकी सिटिंग अच्छी होनी चाहिए, वो कमांड फॉलोइंग होनी चाहिए, उसकी रिसेप्टिव अच्छी होनी चाहिए, वो सबसे कम्युनिकेट करे, सोशल हो, एक नॉर्मल बंदे की एवरेज लाइफ गुजार रहा हो। और ऑब्वियसली जरूर आगे जाएगा तो पता चलेगा कि उसके उसके अब कुछ इंजीनियरिंग में उसके इंटरेस्ट हैं, उसको हम कितना मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो उसको एज अ करियर भी ऑप्ट कर सके। तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल लाइफ है। तो अब दूसरे किसी बच्चे के लिए उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग और उसके और पैरामीटर्स क्या हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है, बट ऑब्वियसली यस कि नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, ऐसा but नहीं like है you said, normal is relative for everyone. एग्जैक्टली। मे बी अब अभी मुझे बात का नहीं पता, पर जैसे अभी उसकी स्पीच में और अभी के में 1 साल का डिफरेंस है, ठीक है, ही इज लैकिंग बिहाइंड 1 year। मेरे पास अभी टाइम है इस 1 साल में, और मैं उस पर कितना काम कर लेती हूँ आगे चल के। फिलहाल अगर मैं और बच्चों से कंपेयर करती हूँ तो मुझे सिवाय इसके कि वो उन बच्चों जितना बोलता नहीं है, मुझे और कोई चीज नहीं लगती डेफिशिएंट, बिकॉज आजकल न्यूरोटिपिकल किड्स के भी इतने प्रॉब्लम्स हैं, फोकस, अटेंशन, स्कूलिंग, एकेडमिक्स। तो अगर उनसे कंपेयर करना शुरू करो, अभी जो मेरे बेटी की जब ऑनलाइन क्लास होती है उसमें 18 में से लाइक से 12 किड्स ऐसे होते हैं जो मुसलसल यॉर्निंग कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग माय सन। तो मेरे लिए वो नॉर्मल है, मुझे नहीं लग रहा होता कि ये लेजी है या ये इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मुझे वो Yeah, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता, बिकॉज मेजोरिटी वैसे ही बैठी हुई है। उसमें से 4 बच्चे रो भी रहे होते हैं, तो अगर ये रोने लगेगा तो मुझे ये नहीं लगेगा कि ही इज थ्रोइंग मी अ टेंट्रम। tantrum or तो अगर something. ये आप Exactly. अपनी कम्युनिटी में ये चीजें देखो, और बहुत से न्यूरोटिपिकल बच्चे भी हैं जिनके स्पीच इश्यूज भी हैं, सो ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारी एनवायरनमेंट में वो चीजें हैं जो कि सिर्फ एक ऑटिस्टिक बच्चे को नहीं, किसी भी बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं। Yeah, sure. Tuba Umar is asking, do you have a diet plan? What biomeds have you tried? Can you just post the meds in reply? Can you post the meds in reply? Those which I have tried, only those. I think, yeah, that's what she's asking. Maybe she's asking I about your own, I your own. already shared in the discussion to, Yeah. those biomed interventions which I have tried.
I don't want you to copy paste them. Like never ever think कि जो चीजें मेरे साथ काम कर गई वही एग्जैक्टली आपके बच्चे के साथ कहेंगे, ये हर मदर को बताते हैं। बट ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट के लिए कि क्या था, नेमचेक प्रोटोकॉल था, देन स्पीच के लिए इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए CBD ऑयल है, स्पीच के लिए फोलेनिक एसिड, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए B12 है, और कुछ और मिथाइलेशन सपोर्ट के सप्लीमेंट्स होते हैं, वो सब हैं। और ऑब्वियसली कि ये मेरे पास टेस्ट मौजूद है, उसमें मुझे पता है कि मेरे बेटे की विटामिन B6 डेफिशिएंट है और उसके कौन से पैरामीटर और कहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा प्लान है। तो अभी फिलहाल इन सब के साथ बहुत अच्छी जर्नी चली। हाँ, ऑयल्स, बैड ऑयल्स नहीं है। डाइट प्लान की बात की आपने, 2 साल होने लगे हैं, 2 साल से कोई बैड ऑयल्स नहीं है। ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है जिसमें हम कुकिंग करते हैं और सबको भी यही बताते हैं जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी है। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल कोई मुश्किल, हाँ बट ये एक्स्ट्रा वर्जिन होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए, अच्छे सोर्स पे होने चाहिए, ये कॉन्टामिनेटेड ना हो। ठीक है, तो आपने बेसिकली तो बच्चों को न्यूट्रिशियस चीजें देनी है, बट ऐसा ना हो कि आप उसको रिप्लेस करने के चक्कर में कुछ और नुकसान दे दो। और इसके अलावा डाइट में कोई शुगर्स, केक्स, हाँ कभी कभार चलता है, कभी कभार, बट इनिशियली 1 साल वो भी नहीं था, बिकॉज वो शायद एक केक लेने के बाद भी पूरा दिन आपका खराब हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। तो अगर आप डाइट में सिर्फ यही कर लो, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत सी मदर्स नहीं कर पाती, आप अगर सिर्फ शुगर्स निकाल के जंक निकाल दो ना, तो लाइक आई वुड से कि 50% तो आपका काम हो गया। उसके बाद आपने क्या डाइट प्लान ऑप्ट करना है। डाइट प्लान्स भी काफी सारे हैं, देन अगेन डिपेंड करता है आपके बच्चे की फूड एलर्जीज के अकॉर्डिंग कि उसे कौन कौन सी चीज़ों से एलर्जी है, उसकी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यीस्ट ओवरग्रोथ, क्या चीज़ कितनी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान्स भी हैं। ठीक है। Aisha Khan is asking how DNA testing helps. ओके, DNA टेस्टिंग हेल्प करती है काफ़ी तरीके से। अगर आपको डाउट है, एक तो कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी फैमिली में रन करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी, तो उसके लिए भी। और अगेन DNA टेस्टिंग में भी बहुत से और ऐसे पैरामीटर्स आते हैं जो कि हमारे जो कॉमन टेस्ट हैं, लाइक हम ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट करते हैं, IgG फूड एलर्जी टेस्ट होता है, और हेयर मेटल टेस्ट, ये बेसलाइन 3 टेस्ट हैं। तो उनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं मौजूद, जो मिस होती हैं, जो कि आप DNA टेस्टिंग में कर सकते हो। बट मैं DNA टेस्टिंग को आपका फर्स्ट बेसलाइन टेस्ट में पहला नहीं कहूंगी कि आपको फौरन से उस पर जाना चाहिए। किसी भी ऐसे बंदे को जो कि अभी न्यू है बायोमेड पे, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आप अपनी बेसिक्स चीज़ों पे काम करना शुरू करो, और उसके बाद अगर आपको एक्चुअली आपके बेसिक जो टेस्ट हैं उसी में ही कुछ पैरामीटर डिस्टर्ब होते हैं, जहां से आपको पता चलता है कि यू नीड टू टेस्ट द DNA टेस्टिंग एज वेल, तो वहां पे फिर आप DNA टेस्टिंग के ऊपर जा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। Okay. Sadia Man is asking, can insulin and probiotics be taken together? And she's also next further commented, I didn't find an insulin good for my kid. Okay, so she is talking about inulin. Inulin is a prebiotic fiber and probiotics. These two are different categories. तो जैसे हमने नेमचेक प्रोटोकॉल की बात की, उसमें इन्यूलिन यूज होती है जो कि प्रीबायोटिक है। वही बात है कि कुछ बच्चों को सूट नहीं करती। तो अगर आपकी टेस्टिंग हो गई है, उसमें आपके पास पिक्चर है कि कौन से बैक्टीरिया, कौन सी यीस्ट, कितनी ओवरग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सप्लीमेंट चूज करते हो कि ईदर यू नीड टू गो फॉर इन्यूलिन और प्रोबायोटिक्स। दोनों साथ नहीं दी जाती, कुछ लोग साथ भी देते हैं, कुछ को सूट भी कर जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, दिस वेरीज फ्रॉम किड्स टू किड्स, बट यूजुअली हमें दोनों नहीं देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपके बच्चे को आपने इन्यूलिन दी और सूट नहीं की, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप इट एंड गो फॉर प्रोबायोटिक्स। ठीक है, इस तरह चल सकते हैं। Okay. Shumaila Tosif is commenting, I don't think this is therapists or specialists are wrong by telling these things because this is what they learned in their books and training. Point is to learn yourself what is successful for issues in your child through proper testing, etc. So या एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। वही बात है कि अवेयरनेस हमें जब नहीं है, तो फिर कोई हमें कुछ कहे या ऐसी कोई बात, तो ऑब्वियसली अब आज से जो आज मेरे आपसे बात भी हो रही है, उसमें हम सिर्फ इसी बात पर ही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से और ऑप्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ें,
देखें, एक्सप्लोर करें, रिसर्चेस देखें, स्टडीज देखें। और अब लाइक 1 साल पहले, 1.5 साल पहले तो ये था कि ठीक है आपने देख लिया सब, नाउ यू आर इंटरेस्टेड कि हम कनाडा में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, और वहाँ हमारी कोई फ्रेंड है उसके बच्चे को इतना फ़ायदा हुआ, बट अब हम क्या करें। जब हाँ मैंने जी। स्टार्ट लिया जर्नी का तो मेरे पास ये सब कुछ हो गया, बट अगेन मुझे वो चीज़ें लाने के लिए कोई सोर्स नहीं था। देन मुझे सुपरवाइज कौन करे, कि किसी पेरेंट को तो बेनिफिट हुआ, बट मैंने अब जो शुरू कर लिया, आगे कैसे पता चले कि आगे क्या करना है, किसी और चीज़ को कैसे चेंज करना है, डोज कैसे चेंज करनी है। अब ये है कि लाइक जैसे मेरा क्लिनिक है और वहाँ पे प्रॉपर फॉलो अप आपका चल सकता है, ठीक है। आपको जो जो सप्लीमेंट्स या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं पूरी अपनी बायोमेडिसिन में, वो भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। देन उन चीज़ों को हम ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं कि जो बहुत ब्रांड कॉन्शियस पेरेंट्स हैं, जिनको वही चीज़ यूज़ करनी है जो अमेरिका में किसी फ्रेंड ने की, वो चीज़ भी होती है। और उसका ऑल्टरनेटिव जो कि हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान में यूज़ कर सके, वो भी होता है। और जो मैंने देखा है कि गेन्स इक्वली होते हैं दोनों पे, ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम कहें कि जी कोई बहुत महंगी चीज़ है तो वो बहुत अच्छी है। देन हमारे अपने नेचुरल भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अपने घर से हमें हमें हमारे अपने किचन से मिल जाती हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बायोमेड को ऑप्ट करने के लिए तरीके बहुत हैं। अवेलेबिलिटी, अब मैं हूँ, मैं देखती हूँ जिसको जितना गाइड कर सकती हूँ, जितना बता सकते हैं। क्लिनिक अभी इतना फंक्शनल नहीं हुआ क्योंकि ये कोविड की वजह से अभी तो फिलहाल स्टार्ट हुआ ही था। तो इसलिए ये कि अब अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास हैं। और वही इनकी बात है कि एक चीज का पता ना होना कि ये लाइक जिस तरह कोई कहता है कि जी आप रिसर्च बेस्ड बात करें, तो एक्चुअली रिसर्चेस तो हैं, स्टडीज तो हैं। मैं अब मास्टर्स कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो पाकिस्तान से बाहर किसी, इवन पाकिस्तान को भी आप ले लें, मैं स्पेशली वो नहीं कह रही, बट जब कोई आपका स्पेशलिस्ट हो या किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट हो, हम वो जब कोई बात करता है तो वो हमेशा एविडेंस बेस्ड ही करता है। जब आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है तो ईच एंड एवरी, तो मुझे एक टॉपिक जो पढ़ाया जाता है उसके एक एक सेंटेंस के साथ एक रिसर्च पेपर होता है। तो इतनी रिसर्चेस हैं और ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हो रहा है, और सबको बेनिफिट भी हो रहा है। तो बस ये बात है कि वही कि अगर बुक्स पे लाइक अभी अगर आप डॉक्टर्स को भी ले लें तो आई एम श्योर कि मेरे अपने अपनी गैदरिंग में अपने कोलीग्स में भी उनको इसमें ये बिल्कुल भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि ऑटिज्म को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम्स को, या रिकवर कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं वाया बायोमेडिसिन। बायोमेडिसिन। ओके। Uh, Tuba Umar is further commenting, genetic tests only help you to get a diagnosis and plan family accordingly. There is no cure of genetic causes till now. There are things under trial. Do you want to add to this? Yeah, obviously I already said like we can't change the gene, but ऐसा नहीं है कि जीन्स पे सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट उसकी एक्सप्रेशन पे इफेक्ट ना करती हो, बिकॉज डायबिटीज भी जेनेटिक है। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा पैदा होता है तो वो उसको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो जेनेटिक हैं, ऑब्वियसली मौजूद हैं, बट किसी बंदे को वो 10 साल की उम्र में पता चलते हैं, किसी को 25 में। अब आजकल अगर आप देखा जाए तो डायबिटीज जो कि पहले 60s प्लस में होती थी, 70s प्लस में, वो 50s में आई, और नाउ अब आजकल क्या है कि वो 20s में भी है, टीन हाँ एजर्स को जी। भी है। क्यों? क्योंकि आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो चुकी है। तो वो जेनेटिक तो वो बाय बर्थ वो चीज है, आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं। सो व्हाट वी डू, वी कंट्रोल, वी ट्राई टू कंट्रोल दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और लकीली ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑटिज्म पे इतना इफेक्ट करते हैं कि अगर आप इनको कंट्रोल कर लो तो आपके 80-90% सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं। Okay. हेवी मेटल्स का भी आपने बताया था कि हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, बट स्टिल उस्मा हसन इज आस्किंग हेवी मेटल्स और ऑटिज्म का रिलेशनशिप, लाइक हेवी मेटल्स अफेक्ट योर। नहीं, हैवी मेटल्स हमारे बच्चों में हैं, सब है, ओके। मेजोरिटी में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ट्रीटमेंट का जो प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट का इतना नहीं है। हाँ, उसमें एक ये है हैवी मेटल्स और ऑटिज्म की रिलेशनशिप। एक्चुअली कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं बहुत एक्सपर्ट हैं जो कि कहते यही हैं कि एक्चुअली ऑटिज्म की
जॉब है ही मेटल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आएगा कि मेटल्स कहाँ से आया बच्चे के अंदर। तो हाँ जी। एक्चुअली हम लोग तो स्टार्ट पहले डाइट से लेते हैं और इन चीज़ों से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, और जो कुछ स्पेशलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एक्चुअली मेटल्स हैं जो रूट कॉज हैं, तो यू नीड टू ट्रीट द मेटल्स फर्स्ट। जब तक आप मेटल्स को ट्रीट नहीं करते, मेटल्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बच्चे की गट इन्फ्लेम्ड हो रही है, बच्चे का ब्रेन इन्फ्लेम हो रहा है, तो ये उल्टी बात हो जाती है कि नंबर 1 पे वो मेटल्स को रखते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ऑटिज्म का मेटल्स का। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि मेटल्स को ही रिमूव करने के लिए पहले काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो रिकवर भी हुए हैं। किलेशन इज द प्रोसेस जिसे हम किलेशन कहते हैं, जिससे हम हैवी मेटल्स को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कराते हैं। और मेटल्स आते कहाँ से हैं उसके लिए भी कंट्रोवर्शियल जो है वो स्टेटमेंट है, जिसमें हम वैक्सीन्स को समझते हैं। लाइक वैक्सीन्स का भी है, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उस पर भी के एक्चुअली नो डाउट उनकी कॉम्पोजिशन में तो मेटल्स हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये होता है कि दे आर बोर्न विद डिस्टर्ब्ड इम्यूनिटी। उसके भी अलग कॉजेज हैं। अब बेशक या फिर ये समझ लो कि शायद जेनेटिकली है, ठीक है, इनकी इम्यूनिटी लो है, दे कांट फाइट बैक द बैक्टीरियाज एंड वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रॉम्प्टली लाइक अदर नॉर्मल किड्स। तो ये चीजें इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। लाइक वैक्सीन सब बच्चों को मिल रही हैं, बट वो बच्चा जो ऑटिस्टिक था उसके लिए वो वैक्सीन जो है वो समझें कि जहर की तरह साबित होती है। और इसीलिए MMR वैक्सीन का ऑटिज्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप समझा जाता है, बिकॉज MMR भी 15 मंथ्स पे दी जाती है और ऑटिज्म के फीचर्स भी कॉमनली 15 मंथ्स पे ही बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री देते हैं कि हमने बस MMR लगवाई और उसके बाद हमारा बच्चा जो है बोलता बोलता चुप कर गया, ये सब। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, इवन कि मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ। और लाइक MMR के बाद उसने सारा अचानक से टिप्टो वॉक और हर चीज़ गोल घुमाना, ये सब कुछ उसका एक्चुअली वहीं से शुरू हो गया था। बट मेरी इन माय केस व्हाट हैपेंड कि ही ट्राइड टू रिकवर दैट। लाइक 3 महीने उसने ये सब किया और उसमें से फिर स्पीच तो उसकी चली गई, मतलब कि वो वर्ड्स नहीं उसने बोले दोबारा, बट हुआ ये कि राइम्स पर ऑब्सेशंस पर आ गया ना। पर मैं उसकी उन 20-25 राइम्स को तो उसकी स्पीच समझती थी, क्योंकि उसकी एज का बच्चा तो उस टाइम पे 25 राइम्स नहीं पढ़ता था। और बट मुझे नहीं पता था बेसिकली कि ये ऑब्सेशन है। वो ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद मी, ही इज नॉट कमिंग टू मी, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। तो ये वैक्सीन्स का वो वैक्सीन्स को कल्प्रिट समझा जाता है इसके लिए, स्पेशली MMR को। और उनकी कॉम्पोजिशंस में मेटल्स हैं, और वही बात है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो मेटल्स बच्चों में आते हैं ज़्यादा, और जब तक वो मेटल्स वहाँ पे हैं वो ये सारी डिस्टर्बेंसेस, पैथोलॉजिकल चीज़ें, ये केमिकल रिएक्शंस, ये सब करते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि टेस्ट की बात हो रही है, तो गुलजेब खानम is asking, please tell about the basic tests that parents should do for their kids. Similarly, Tubama is also asking, can you name the tests that you are talking? Okay, so I'm talking about organic acid test. Organic acid test is done on the urine sample. ठीक है, आप यूरिन में कोई ऑलमोस्ट लाइक 60-70 मार्कर्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट बॉडी फंक्शंस में, लाइक आप ये कह सकते हैं ईच एंड एवरी बॉडी फंक्शंस। तो वो टेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा या कम, डिपेंडिंग ऑन वट एवर एबनॉर्मेलिटी यू हैव इन योर बॉडी। तो वो लेवल्स जब हमारे पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को वो चीज़ें रिप्लेस करते हैं। अगर कोई चीज़ कम है तो वो सप्लीमेंट करते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो गए, सब कुछ ठीक है। वाइटामिन लेवल्स होते हैं इसमें। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास IgG फूड एलर्जी टेस्ट होता है, IgG फूड एलर्जी टेस्ट। ये फूड एलर्जी टेस्ट आपको ऑलमोस्ट सारे बेसिक फूड आइटम्स जो हमारे हैं, जिसमें वेजिटेबल्स लाइक 10-12 वेजिटेबल्स, 10-15 फ्रूट्स, उसके बाद आपके मीट, मटन है, बीफ है, चिकन है, एग योक है, एग वाइट है, और उसके अलावा चीज़, सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइक हमारी जितनी भी फूड कैटेगरीज हैं जिसमें ग्रेन्स भी हैं, और ग्लूटेन कंटेनिंग जो फूड्स हैं, इन सारी की आपके पास एलर्जी की सेंसिटिविटी की आपके पास आ जाती है कि आपके बच्चे को किस किस चीज़ से एलर्जी है। एंड ऑब्वियसली ऑटिस्टिक बच्चों में ये एलर्जीज ज़्यादा हैं कंपेयर टू न्यूरोटिपिकल
तो Neurotypical जब shit. आपको जी एग्जैक्टली और वही बात है कि इधर मेटल्स की वजह से, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या जेनेटिक्स कह लें, इनकी वजह से इनकी गट जो है वो डिस्टर्ब्ड है, इन्फ्लेम्ड है, और जिसमें विजिबल साइंस मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, पिकी ईटिंग है, ये वो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बच्चों में बहुत, ग्रोथ प्रॉब्लम्स हैं, जो है वेट गेन नहीं करते, हाइट नहीं इनकी बढ़ रही होती, या फिर ये ज़्यादा ओवरवेट होते हैं बच्चे, ये सब चीज़ें। तो आईजीजी फूड एलर्जी टेस्ट नंबर 2 आपको ये सारी एलर्जीज बताता है, सो यू कैन इजीली एलिमिनेट दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर डाइट, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 पे मेटल्स के लिए हेयर मेटल टेस्ट होता है। उसके लिए हेयर का सैंपल लिया जाता है और आपके हेयर्स में वो सारे एलिमेंट अगर जो भी मेटल्स हैं लाइक मर्करी है, लेड है, आर्सेनिक है, और भी बहुत सारे हैं, ये सारे आपके हेयर में चेक होते हैं। सो अब फिलहाल अगर हम मेटल्स को ट्रीट नहीं कर रहे, बट हम क्या करते हैं कि हम इन मेटल्स के सोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। एल्यूमिनियम है, लाइक अब बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में एल्यूमिनियम बहुत हाई है, तो हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स चेंज करवाते हैं। ये मदर्स हम लोग या तो जो है स्टेनलेस स्टील में करते हैं, उसमें कोई और मेटल नहीं होना चाहिए को, या फिर बहुत सी मदर्स, मतलब सरप्राइजिंगली आई एम रियली अमेज्ड कि औरतों ने मिट्टी के बर्तन रख लिए हैं और वो उसमें पकाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि करने में नुकसान है या कोई गलत की जा रही है। मतलब एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, यू आर डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क फॉर योर किड along with therapies and everything। तो ये 3 बेसिक टेस्ट होते हैं, ओट्स है, आईजीजी फूड एलर्जी एंड हेयर मेटल्स। इसके बाद आप इसके अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हैं जो इसमें भी डिस्टर्ब आ सकते हैं और उसके लिए आपको फर्दर टेस्टिंग की जरूरत हो। देन अगेन डीएनए टेस्टिंग है, आपको फर्दर अपने, और अगर आप फैमिली अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए, या आपको अभी भी अपने बच्चे में अगर आपके ओट्स में कुछ ऐसे मार्कर्स आए हैं जो आपको सिग्निफाई कराते हैं कि किसी सिंड्रोम की तरफ या कोई जेनेटिक और डिसऑर्डर की तरफ, तो फिर उसके लिए भी हम कंफर्मेटरी डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं, तो वहां से भी पता चल जाता है। स्टूल टेस्ट भी होता है। अब तो काफी लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई है, तो अब तो मैं देख रही हूँ कि रिसेंटली अब बहुत से लोग इन 3 बेसिक्स के अलावा भी 5-6 को प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज वो ये कहते हैं कि जब हमने एक बार अब काम शुरू करना है तो हम चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर पिक्चर मिल जाए पूरी और हम पिक्चर कम में से कम टाइम में, बजाय इसके कि वेट करें 6 महीने बाद करवाएं। तो अब तो लोगों का अब ये माइंड सेटअप बन चुका है। स्टूल टेस्ट है, उसमें आपको पता चल जाता है आपकी गट में क्या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कितने लेवल पे है, क्या फ्लोरा कैसा चल रहा है, इस तरह की बातें। तो ये सब और एड अप हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर बात की जाए तो वहां पर तो ऑलमोस्ट 10-12 टेस्ट होते हैं जो कि बेसलाइन होते हैं। देन इसमें ऑटिज्म से जो स्टडी हो चुका है, जो कि ऑटिज्म रिलेटेड 12 मेडिकल कंडीशंस, सॉरी 22 मेडिकल 22, डिसऑर्डर्स okay. हैं जो कि कोमॉर्बिड्स हैं, जो कि ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत स्ट्रांगली पाए जाते हैं, ठीक है। उन 22 मेडिकल कंडीशंस में को बेसिकली यही बायोमेडिसिन में है। अगर आप उसमें से, अब क्योंकि 22 मेडिकल कंडीशंस हैं और उनमें से बहुत कॉमन है। नंबर 1 फूड एलर्जीज, नंबर 2 एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का कोई भी रिएक्शन बच्चे को, नंबर 3 मेटल्स, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रियल इश्यूज, बहुत सारी चीजें, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, पैंस है, पैंडाज है, ये वो चीजें हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हो। तो अगर आपका बच्चा ASD प्लस उसको ये कोमॉर्बिड मेडिकल कंडीशन एक है, उस कॉमन कॉमन कोमॉर्बिड्स हैं, हाँ अगर आप जी, इन कोमॉर्बिड्स को ट्रीट करते हो तो एक्चुअली आपका बच्चा 80-90% इंप्रूव हो जाता है। जो रिकवरी स्टोरीज होती हैं कि जी बायोमेड पे रिकवर हुए, एक्चुअली दिस इज हाँ द जी, थिंग कि आपके एक बच्चे को बहुत ही कॉमन सी चीज उसके साथ मेडिकल कंडीशन चल रही है, बट क्योंकि हमें ये सिर्फ और सिर्फ पता यही है कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इट्स अ न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस जिसका कोई इलाज नहीं है, हम इन चीज़ों पे एतबार नहीं करते। और जब ट्रस्ट नहीं करते तो ना हम कभी इन चीज़ों को पढ़ते हैं। और अगर बहुत से लोग पढ़ भी लेते हैं तो वो इवन पढ़ने के बावजूद वो यही सोचते हैं कि ये गिनी पिग्स बनाया हुआ है या अब पता हाँ नहीं जी, क्या चल रहा है। तो बेसिकली इससे आई थिंक यही है कि आप अपने बच्चों का जो एक बहुत स्पेशल टाइम है ना, उसको आप एक बहुत छोटी सी चीज के ऊपर मिस कर रहे हो, जिसमें सिर्फ एक चीज है, में भी आप गूगल करो, आप 10 मिनट में कुछ ऐसा आर्टिकल पढ़ लो कि आप काउंसिल हो जाओ कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। और ये सब इसके रिसर्च पेपर्स हैं, वही बात है, सब कुछ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। everything is available, you just need to go through it.
यस एग्जैक्टली, आप प्रॉपर सोर्स पे जाएं जहाँ पे जो है वो प्रॉपर पेपर्स शेयर हुए हुए हैं, उधर जाएं, वहाँ पे आपको अच्छे सोर्सेज पे अच्छे जर्नल्स में आपको जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, वो पूरी दुनिया में भी यही प्रॉब्लम है कि ऑटिज्म पे अभी भी, इवन आप यूएस में भी ले लो, जितना और फील्ड्स में काम हो रहा है उतना तो नहीं हो रहा। तो हाँ जी। ऑब्वियसली हम पेरेंट्स को ही जो है करना पड़ता है, लाइक जैसे मैंने अपने बेटे के लिए यहाँ की, और देन जब मुझे नजर आया कि अपने सर्कल में अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ डील करने के बाद और ज्यादा, तो जब एक पेरेंट को फायदा होता है तो ही वो और किसी से शेयर करता है कि एक्चुअली दिस इज वर्किंग। सो ठीक इसमें है। एक टाइम तो ये था कि किसी को हमें कन्विंस नहीं करना पड़ता था, जिसको खुद ही समझ आ जाता था कि ये जो है अपने बच्चों के लिए करना चाहिए तो वो करते। बट अब मेरा ख्याल है ये टाइम है कि जब आपके पास एक एविडेंस है कि इतने बच्चे हैं और उनकी ये इम्प्रूवमेंट्स, स्पेशली मेरे पास तो अब पाकिस्तान रिलेटेड डाटा है, स्पेशली इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ किड्स हु आर ऑन बायोमेडिसिन जो डायरेक्टली मुझसे इन कांटेक्ट हैं, जिनका फॉलो अप, जिनकी प्रोग्रेस मेरे पास होती है। और ओके। अब पाकिस्तान में तो हम फिर उनको सामने रख के तो हम बात कर सकते हैं। इनिशियली तो ये था कि हम बात करते थे, जी आप तो अमेरिका की बात कर रही हैं, हाँ जी। अमेरिका हाँ के जी। बच्चों का हमसे क्या मुकाबला। तो ये तो अब फिलहाल वो है जो हम खुद करते हैं। ठीक है। Mom, we'll take one more question. Sadaf is asking, what would you suggest easy way of detoxification? Okay, so Sadaf, easy way of detoxification, you can start with herbal remedies at your available in Pakistan or at your homes as well. But detoxification is not that much easy कि यहाँ पे आप उसको जो है चीजें आप कर सकते हो जो घर पर अवेलेबल हैं या नेचुरल हर्ब्स पे, बट ये इतनी आसानी से या इतनी जल्दी नहीं हो सकता कि लाइक अगर आप बगैर प्लान, बगैर टेस्टिंग के, बगैर प्रॉपर उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किए बगैर ये कर लो, ये नहीं हो सकता। ठीक है। Uh, so और there, इंटेंशनली आई एम सॉरी, मैं अभी डिस्कशन में कोई ऐसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहती, ना ही किसी okay, ऐसे हर्ब सप्लीमेंट्स और एनी अदर थिंग जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसमें मैं ये नहीं चाहती कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज या इंफॉर्मेशन कोई भी ये सुनकर खुद से स्टार्ट करना शुरू कर दे। हाँ जी, नहीं, इसी से definitely, to all the viewers who are watching, ये बात बिल्कुल सही है। Dr. Sana is giving a lot of information, but as she's pointing out, proper testing needs to be done before you can follow any protocol. तो उसकी भी guidance आप लोग ले सकते हैं। I would just say ki thank you so much for all the comments and all the questions. I'm still reading and trying to sort out because I know ki all answering all of them is really not possible. However, let's take one more, please. Seher is asking, my child's earlobe inflames sometimes. What does this indicate? But she hasn't given any diagnosis. Ki kya, unke, what diagnosis the child has. यस, यही बात है कि एक्चुअली में भी रिज्यूम करते हैं Sorry, ma'am, you're दी cutting a bit. Hello? Uh, Doctor, I can't hear you. Hello? Okay, everyone. I think there has been a connection problem. I'll see if I can get back in touch. Jirida, Hello? can you hear me? Yeah, I can hear you Jirida, now. can you hear me? Okay, so I was saying कि ईयर लोब इन्फेक्शन, ऑब्वियसली अगर ये सिर्फ ईयर लोब की बात कर रही हैं ऑटिस्टिक बच्चा, Hmm. इतना मुझे इन्होंने डिटेल्स नहीं बताई कि ईयर लोब इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, कि वो रेड हो जाती है। ऑटिस्टिक बच्चों में हिस्टामीन टॉलरेंस या ओवर सेंसिटिविटी होती है हिस्टामीन की, Okay. उसमें क्या होता है कि इनके ईयर्स जो है ना वो रेड रहते हैं, मे बी आपने भी ऑब्जर्व किया हो, नोज या चीक्स भी, या जरा सी गर्मी हुई या सोते हुए नॉन स्पेसिफिक कुछ भी फूड
खा सकते हैं तो यूजली या फिर जरा सा कोई मेल्टडाउन या कुछ, बट ईयर्स इनके अचानक से रेड हो जाते हैं। तो ये अगर तो उसकी बात कर रही हैं तो ये हिस्टामिन सेंसिटिविटी होती है और ये भी ऑटिस्टिक बच्चों में काफी कॉमन है। ठीक है, ठीक है। So, ma'am, thank you so much for joining us and answering so many questions. If we continue, the questions to chalte hi rahenge. But still, thank you. Before we end this session, what piece? काफी advices भी आपने दे दिए हैं, but still, I would say कि what piece of advice would you give to all the parents out there? My piece of advice would be just to keep themselves updated और अपने अपने बच्चों के लिए जो है वो पढ़ना शुरू करें। ठीक है, जितने ऑप्शन हैं, नॉट जस्ट बायोमेड, बट ये कि जितने भी ऑप्शंस आप लगता है स्टडी बेस्ड रिसर्च बेस्ड ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं आपके बच्चों की बेटरमेंट के लिए, उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव वो ऑप्ट करें, गाइडेंस लें। आप अब तो ऑन स्काइप मीटिंग्स होती हैं, ये बात के लिए प्रॉपर मैप्स किसी भी जगह पर मीटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पाकिस्तान में अब हालात बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बायोहील स्पेक्ट्रम तो Okay, I think I've lost her again. Hello? Can you hear me? Um, we'll just wait a few minutes. We'll see if the connection issue resolves. I am just reaching out. Thank you so much for all your wonderful comments and questions. This session has been really informative for me as well, and I'm sure you all have benefited as well. I'm trying, but yeah, I've lost her. So okay, I'm just gonna contact her. Binte Iqbal is saying thank you so much for informative sessions. Thank you so much, Binte Iqbal. Sadaf has also mentioned that it was an informative session. Thank you so much for your support, Sadaf. So yeah, I don't think she can join again. Unfortunately, we are having some connectivity issues. But once again, thank you so much, everyone. And we try to take as many questions as possible, but still a few were left. However, you can reach. Oh, I got it back. Sorry. Sorry, there was some internet issue, I Anji. guess. Yeah, no, it's okay. So I think it's better अब जो है वो खुदा हाफिज कह लें कि इंटरनेट से भी बर्दाश्त नहीं। हाँ नहीं मैं वही I was just telling all the viewers कि thank you मतलब we try to take as many questions as possible, but I don't think I would more like will to, be. Yeah. मैम आप कंटिन्यू करें. can you hear me? Yeah. Yeah, so I would like to thank you, the whole Creative Kinder House team, for giving me this platform to speak something related to biomedicine. It's a really great step क्योंकि controversial topic है और उसके
स्टैमिना और जो है Um, okay. Yeah, okay. Sorry, guys. We have lost her again. So, like I said, can we try to take as many questions as possible? But still, if you still have more questions, you can reach out to Dr. Sana. She has the Facebook page from Bioheal Spectrum Pakistan. That can be directed to her clinic. And thank you so much for joining us. Allah Hafiz.